پنجاب کی جو ہے وہ حکومت کا ویژن ہے اور ہمیں یہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو چیف منسٹر صاحبہ کا یہ پیغام ہے جو میں آپ کی طرف سے پہنچانا چاہتی ہوں کہ 15 فروری تک تمام مستحق خاندان جو ہے وہ اپنی اپنی رجسٹریشن جو ہے وہ کرا دیں. لیکن اب ہو کیا رہا ہے, ایک طرف وہ کام کر رہی ہیں, وہ یہ سب چیزیں دے رہی ہیں, KPK کے لوگ جو ہے بچے وہ چیف منسٹر صاحبہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بلا لیں, ہمیں بھی لیپ ٹاپ دیں, ہم بھی اسکالرشپ چاہتے ہیں. بلوچستان کے بچے کچھ دن پہلے آئے تھے, ان کو بھی لیپ ٹاپس جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے کی, اور لیپ ٹاپس کے ساتھ جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی اسکالرشپس دیں. ہمارے بھی بہت ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہمارے تعلق ہے, اور بہت سارے بچے ایسے تھے جو اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے فیملی کے جو ہے وہ بڑے بچے تھے, یعنی وہ ساتھ ساتھ اپنا روزگار بھی کماتے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. تو چیف منسٹر صاحبہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ ان کے اسکالرشپس کے لیے بھی جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک طرف یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ بدتمیزی ہو رہی ہے, بد زبانی ہو رہی ہے, اور وہ گھٹیا حرکتیں کر کے جو ہے وہ اپنے خاندان کی تربیت, تو میں نہیں کہنا چاہتی چونکہ میں نہیں سمجھتی گنڈا پور ہو یا باقی لوگ ہوں, کسی کی والدہ صاحبہ نے یہ تربیت کی ہوگی جو وہ تربیت سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں. یہ یقیناً ان کے خاندان کی تربیت نہیں ہے, یہ ان کے اس لیڈر کی تربیت ہے جو اپنے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر بھی یہی بدتمیزی اور بد تہذیبی کے ساتھ جو ہے وہ عورتوں کے نام بھی لیتا تھا, مردوں کے نام بھی بگاڑتا تھا, کبھی چادریں لے لیتا تھا سر کے اوپر, اور جو ہے وہ منہ بگاڑ کے دوسروں کی توہین کرنے کی کوشش کرتا تھا. تو اس حرکتوں سے کسی کی توہین نہیں ہوتی, اس شخص کی اپنی جو ہے وہ کوشچن ہوتا ہے اس کی تربیت کے اوپر, اس کی بیک گراؤنڈ کے اوپر. اور یہ جو بچے آج بہت والہانہ طور پر آ کے چیف منسٹر کو ملتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ میں چونکہ ہر پروگرام میں ساتھ جاتی نہیں ہوں تو میں سوچنا چاہتی تھی کہ یہ آخر یہ کیا ہے. وہ بچیاں آپ یقین نہیں کر سکتے کہ وہ صوفے پھلانگ کے جو اس کے بعد ایونٹ کے بعد صوفے پھلانگ کے وہ مطلب روندنے والی ایک حالت ہوتی تھی ان کی کہ ان کو چیف منسٹر صاحبہ کے قریب پہنچنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی حکمران اس طرح سے ایکسیسیبل نہیں ہوا. ان بچوں کو, ان بچیوں کے بیچ میں اس طرح سے کسی حکمران نے آ کر وہ اپنائیت شیئر نہیں کی جو وہ ان کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, اور ان کو دھکے بھی پڑے ہوتے ہیں, ان کے گلے میں دوپٹہ بھی پھنس جاتا ہے, ان کے کپڑے بھی نوچے جاتے ہیں. وہ بیچاری بچیاں خوشی سے کر رہی ہوتی ہیں, کوئی وہ نہیں ہوتا, وہ کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے, کوئی ادھر گھسیٹ رہی ہے. اور مجال ہے کہ آپ نے کبھی چیف منسٹر صاحبہ کے چہرے کے اوپر ایک شکن بھی دیکھی ہو. میں نے ایک دن کہا, میں نے کہا جی اس دن آپ کے گلے میں دوپٹہ پھنس گیا تھا, بڑی مشکل سے آپ کے گلے کا پھندا ہم نے نکالا ہے, لیکن آپ مسکرا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ گلے میں میرے دوپٹہ پھنس گیا ہے, مجھے احساس یہ تھا کہ وہ بچی جو مجھ سے ملنے کے لیے, جو مجھ سے تصویر کھنچانے کے لیے بیتاب ہے, میں اس کے قریب کیسے پہنچ سکتی ہوں. تو یہ وہ بچے جو ہیں وہ جس محبت کا اظہار کر رہے ہیں اس کی بہت تکلیف ہے لوگوں کو, لیکن میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تکلیف ان کی جاری رہے گی, اور یہ تکلیف جو ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اور اضافہ ہوگا. ابھی وہ اسکالرشپس لے کے گئی تھیں, اب اگلے مرحلے میں جو لیپ ٹاپس ہیں وہ ان بچوں تک تقسیم ہونے ہیں. اور تیسرا جو وعدہ انہوں نے ان سے کیا ہے کہ 1 لاکھ اسکوٹیز جو ہیں وہ ان طالب علموں کو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک جو ہے وہ سال کے اندر ان کو مہیا کرنی ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو چیف منسٹر صاحبہ کی جو خدمت اور کارکردگی کی جو سیاست ہے اس سے وہ اس میں, اور فتنہ فساد نفرت کی سیاست میں جو فرق ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ مخالفین کو جب اور کوئی بات نہیں ملتی تو وہ جو ہے وہ گندگی اور واہیات پن کی ایک نئی سٹیج کو جو ہے وہ عبور کرتے ہیں. ابھی میں نے آنے سے پہلے ایک بگوڑا ہے, آج کل وہ یوٹیوبر ہے, میں نے سنا ہے یوٹیوبنگ ہی کرتے ہیں وہ, اور جو ہے وہ ان کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا جس کے اوپر انہوں نے اتنا, وجاہت احسان ان کا نام ہے, وہ یاد ہے وہ ٹب میں لیٹ کے ان کو ویڈیوز بنانے کا بڑا شوق ہوتا تھا. میں وہ جو ٹویٹ میں نے ان کو دیکھا ہے اس کے اوپر میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ آپ کی والدہ سے, اگر آپ کی بیگم صاحبہ ہیں ان سے, اور آپ کی اگر کوئی بیٹی یا بہن ہے تو ان سے مجھے دلی ہمدردی ہے کہ آپ جیسا ایک ذہنی مریض شخص جو ہے جو کسی اور خاتون کے اوپر اس طرح کی جو ہے وہ جملے لکھے اور اس طرح کی باتیں کرے, ان کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی ہے. آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ ہیں پاکستان کی جو مردوں کی جو ایک جو تشخص ہے اس کے اوپر بہت کالا دھبا ہے, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں جو یہ ٹیومر پھیلا ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر بدتمیزی اور بد تہذیبی کا, اس کا کوئی علاج نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ. 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر احتجاج کی کال دے دیا, اور یہ بھی سننے میں آیا کہ لانگ مارچ بھی ہوگا, اور پرسوں 27 تاریخ کو جو ہے وہ
26वीं आईनी तरमीम के हवाले से समाअत किया, उस पर भी कुछ कमेंट्स करें। इतने बड़े बड़े 2 सवाल पूछ लिए आपने। पहले तो बात यह है कि तरीके फसाद जो है ना, तरीके आप वैसे जब कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो तरीके फसाद जो है ना वो है तरीके फसाद ही। वैसे तो फाइनल कॉल भी कर चुके हैं और वो तमाम तर जो उनके हरबे थे वो तमाम आजमा के देख चुके हैं, तो कुछ नहीं हुआ। अब उनकी आखिरी उम्मीद ये है कि अब हम वो 1-2 पार्टी के लोग हैं, वो 3 पार्टी के लोग हैं, वो फलानी वो सारी तांगा पार्टियों को इकट्ठा करके एक तांगा बनाएं और उसको लेके फिर वो निकले, चूँकि अपने तौर पे ये बाहर निकलने के ना काबिल हैं, ना लोग उनको सपोर्ट करते हैं। मेरा सवाल है, ये जो इतनी मकबूल जमात है, इमरान खान को सज़ा हुई अलकादर के ऊपर अभी कुछ दिन पहले, पंजाब में तो खैर चिड़ी जो है वो पर नहीं मारती, KPK में कितने लोग निकले? KPK में किसी ने एहतजाज किया कि हमारे लीडर के ऊपर बड़ा जुल्म हो गया, बल्कि मैंने एक ट्वीट भी किया था, वो उनके अपने लीडर जो हैं सारे वो खड़े होकर क्या मार रहे थे कि हमने बड़ा मतलब बहुत आज खुशी का दिन है। तो ये जो मकबूल लीडर है जो घर में बैठ के या जेल में बैठ के बहुत मकबूल है, उसके लिए कोई बंदा बाहर निकलना नहीं चाहता, और अगर अभी भी इनकी गलत फहमी दूर नहीं हुई तो इनको कोई और एडवेंचर करना है तो करके देख लीजिए। अज़मा ये बता देगा कि ये जो बानी पीटे हैं उन्होंने मुज़ाकरा से इनकार कर दिया है, तो क्या उनकी डील नाकाम हो गई है या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से नाउमीद हो गए? मेरे ख्याल है सारे पास से ही ना हो गई, और वो अब हर तरफ से ना के बाद अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा कि वो फितना फसाद को दोबारा करने की कोशिश करें। लेकिन इस दफ़ा नया ये होगा कि ख़ुद करने के काबिल नहीं है, ख़ुद अकेले नहीं निकल सकते। कोई 10 बंदे इस पार्टी के, 15 बंदे उस पार्टी के, 20 बंदे उस पार्टी से इकट्ठे करके इनका शायद कोई एडवेंचर का प्रोग्राम है। पहले भी इन्होंने मुँह की खाई और अब भी अगर इनको कोई शौक चराया है तो ये मुँह की खाएंगे। एक खातून की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो सोशल मीडिया नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं पहले से आ चुका है। सरकारी मुलाजमीन अभी भी ये हरकतें कर रहे हैं और हरकतें बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन ये नोटिफिकेशन पहले से आ चुका है। इवन इस्तेमाल पे जो है वो थोड़ी पाबंदी आयद की गई थी कि इस तरह से जो है वो चीजें ना बनाई जाए, लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कुछ जगहों पे कि CM के हवाले से जो है AI के ऊपर जो है वो बनाई जा रही काफी सारी चीजें। देखिए इसके ऊपर ये यहाँ से बात शुरू हुई थी कि चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद ऑब्जर्व किया था कि जब वो किसी जगह पर जाती हैं तो बजाय पुलिस वाले अपना काम करने के वीडियो बना रहे होते हैं। तो उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी हुआ था कि सरकारी मुलाजमीन जो है वो ड्यूटी के दौरान ख़ास तौर पर, वो टिकटॉकें भी देखी आपने, वो एक खातून थी, वो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, मैं तो वो दोहरा भी नहीं सकती थी, वो यूनिफॉर्म के अंदर। तो ये हरकतें मतलब सरकारी मुलाजिम को जेब नहीं देती। ये बताएं कि 190 मिलियन पाउंड की बात से जब से ये केस आया तो एक प्रॉपर्टी टाइकून महज गुफ्तगू है हर जगह पर सोशल मीडिया नाम तो उसका है। अच्छा गुज़िश्ता रोज ख्वाजा आसिफ साहब ने नाम लेकर कहा है कि मलिक रियाज साहब के हवाले से रियासत 25 साल बाद उन पर हाथ डालने जा रही है। क्या आप समझती हैं कि रियासत अब अगर उसका गिरबान पकड़ती है तो क्या कोई गिरबान उसका छुड़ा भी सकता है? देखिए अब ये क्या हो सकता है, इतना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब तो मैं नहीं दे सकती। सवाल बात ही इतनी है कि जो जिसने किया है वो उसको भुगतना तो पड़ेगा, और ये नहीं हो सकता कि आप ब्लैकमेल करें, आप कहें कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो इमरान खान भी कहता होता है, वो बल्कि आपको याद है सोशल मीडिया पे वो गुलेल होगी, फिर मैं पता नहीं वो परिंदे मारूंगा, वो वाला लतीफ़ा भी चलता है। तो भाई मतलब ये जो है ना, ये रियासत को घुटनों पे लाने का शौक़ जो है ये शौक़ ही रहेगा। ये किसी सियासी जमात का हो, किसी फितना ग्रुप का हो या किसी इंडिविजुअल का हो। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया आपको फेस करना चाहिए, और अगर आपने गलत किया है और आप जो है उसका जवाब भी नहीं देना चाहते तो ऐसा तो नहीं हो सकता। 2 सवाल है। आपने पहले अज़मा साहिबा के हवाले से, मरियम साहिबा के हवाले से कहा कि वो हर जगह एक्सेसिबल है, जा भी रही हैं, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि पंजाब की मां के तौर के ऊपर वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं। पाकपतन में एक मुकदमे के हवाले से आया कि व्हाट्सएप के अंदर कमेंट्स करने के ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। तो पूरी नहीं कमेंट्स नहीं करने के लिए ऊपर, मैं उमर उसको जरा डिटेल देख लीजिए। एक सवाल दूसरा भी साथ नहीं, मेरी याददाश्त बड़ी काम है। देखिए गुजारिश ये है कि अगर व्हाट्सएप ग्रुप बने ही इसलिए हैं कि हमने डिसैमिनेट करना है गंद, और हमने डिसैमिनेट करनी है ये सब चीज़ें। अब देखिए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज़ साहिबा नानी है, आपको पता नानी के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन उठाए गए थे, उनको नानी कह के तज़ीक की जाती थी, वो नानी होना भी उनके लिए ऑनर था। और आज अगर पंजाब के बच्चे इनको माँ कहते हैं, माँ होना भी उनके लिए ऑनर है। अल्लाह का शुक्र है जिनको जो अपनी माँ, जिनके घरों पे बेटियाँ होती हैं वो नानियाँ बनती हैं। जो बेटियां तस्लीम ही नहीं करते, उन्होंने नाना नानी क्या बनना है, उनको क्या पता नाना नानी क्या होता है। और जिन्होंने जो है वो
मतलब अपने बच्चों की माओं का कुछ लिहाज नहीं किया, वो कौम की माँ का लिहाज क्या करेंगे। दूसरा सवाल भी कि मरियम साहिबा जा रही हैं तालीमी इदारों में तो अच्छी बात है, जब खान साहब बतौर वजीर आजम गए थे तो मुस्लिम लीग नून ने बहुत रद्दमल दिया था कि सियासी टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है तालीमी इदारों को। बिल्कुल नहीं, तो क्या मुस्लिम लीग नून भी नहीं, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जहाँ दिल चाहता था, बल्कि वो सैलानी में भी घुस जाते थे, सैलानी में भी जाके ना रोटी आगे रख के कहते थे हमने लोगों को खाना दिया है। तो भाई मेरे मुंह से आप सच ना सुने। दूसरी बात यह है कि नमल यूनिवर्सिटी जिसके ऊपर वो आज भी क्रेडिट लेते हैं वो शहबाज शरीफ साहब की जीवन आप खुद वकील हैं, अब पीटीआई कह रही है कि जो एनसीए की तरफ से अलकादर ट्रस्ट की केस में जो 190 मिलियन पाउंड है, उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में जानी थी रकम, वही जमा कराई है। नहीं, ऐसा नहीं। इस्लामिया में दूसरा, आप खुद वकील हैं, बताइए इस कानूनी नुक्ते पे क्या होगा। जी बड़ी सिंपल बात है कि मलिक रियाज साहब को अब ये टू कर देंगे कोई तो उनकी मर्जी है, उनको एक जो है वो जुर्माना हुआ था और उस जुर्माने के लिए एक अकाउंट खोला गया था और वो कहा कि जुर्माने की रकम यहाँ जमा कराएं। उसके साथ साथ एक केस शहजाद अकबर ने शुरू कराया था बड़े शौक से कि वो जो है ना लूटी हुई दौलत आएगी, 100 अरब इधर मारेगी तो 100 अरब उधर मारेगी। उस अरब मारने के चक्कर में उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कराई एनसीए को कह के, और उस एनसीए ने हसन नवाज साहब को भी बुलाया और शहबाज साहब की पूरी फैमिली का भी जो है वो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई और उसके बाद इन दोनों को क्लीन चिट दे दिया गया। बट जो बैरियर टाउन के हवाले से उन्होंने ये बात जो है वो बाकायदा तौर पर फैक्ट्स के साथ उन्होंने कही कि ये पैसे जो है ये इलीगल मींस के ज़रिए आए हैं और ये जस्टिफाइड पैसे नहीं है, पाकिस्तान की अमानत है, इनको वापस जाना चाहिए। अब ये सिंपल सी बात थी कि ये पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर आने चाहिए थे। यहीं पर तो शहजाद अकबर साहब का ब्रीफ केस काम आया जो उन्होंने लिया था कि वो उन्होंने वो पैसे जो हैं वो जुर्माने की मद में जो है वो जमा करा दिए। हालांकि ये दो रकमें थी जो पाकिस्तान के अवाम की अमानत थी, एक वो जुर्माने की रकम, साथ में ये 190 मिलियन पाउंड्स, और उसको एक एक सेटलमेंट के ज़रिए जो है वो अपने दोस्त को फेवर देने की कोशिश की गई। और वो ये इस सिंपल इज़ दिस केस कि ये एक जुर्माने की रकम को दूसरे जुर्माने में एडजस्ट करके एक बंदे को फेवर दी गई, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके। नहीं, दो चीज़ें हैं। एक तो चीफ मिनिस्टर साहिबा हमेशा से इस बात की बहुत पहले दिन से वो कायल हैं कि हमें जो कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये मार्केट जो प्राइसेस हैं उनको देखा जाना चाहिए। चीनी के हवाले से भी जो प्राइस में इजाफा हुआ है वो यकीनन ये तलब और रसद का भी एक बीच में वो इम्पेक्ट होता है। दूसरा चिकन के हवाले से, चूँकि सर्दियाँ हैं, हमारे शादियाँ ज़्यादा होती हैं, हमारे जो ये उस वजह से ये हमेशा, इस साल नहीं, आप पूरा रिकॉर्ड निकाल के देखिए, चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी एक मीटिंग ली थी इसके ऊपर चिकन की कीमतों में इजाफे के हवाले से। और ये एक ट्रेंड है कि दिसंबर और नवंबर, दिसंबर, जनवरी के अंदर ये 3 महीने एक आर्जी पीक आता है और उसके बाद फिर वो सेटल डाउन हो जाती है। लेकिन ये शायद आपको पता नहीं चला कि लाहौर में दालें और चने जो है और चावल की कीमतों में कमी हुई है। दाल बारीक में भी, सब्जियों में भी, दाल बारीक जो है उसमें 50 रुपये की कमी हुई है। स्पेशल दाल जो है 45 रुपये, माश की दाल में 30 रुपये, काला चना जो है मोटा उसमें 50 रुपये, जो लोकल है उसमें भी 50 रुपये, बेसन की कीमत में 30 रुपये। और अभी ये तमाम प्राइसेस को और रेगुलेट किया जाएगा रमज़ान से पहले भी, और सब्सिडाइज्ड कीमतें जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो आवाम तक पहुंचाई जाएंगी। ये सारी तैयारी तो पंजाब में हो रही है। कहीं और किसी ने कुछ सुना, किसी और को पता चला कि पंजाब के अवाम के लिए तो चले रिलीफ की तैयारी हो रही है, बाकियों में क्या हो रहा है? उल्फत बहुत देर से पिछली बार पंजाब गवर्नमेंट ने लोगों की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, उनके घरों पर बड़े सलीके के साथ चीजें पहुंची। इस बार भी ऐसा ही है जाएगी और जी, क्या क्या आपको पैकेज अनाउंस हो गया? जी ऐसा ही है, और इस दफ़ा जो है वो मैं अभी अनाउंस नहीं करना चाहती, इसके ऊपर तय हो गया है, लेकिन अभी भी लोगों को उनके घरों के ऊपर जो है वो मिलेगा। उनको ये नहीं होगा कि आप और चीफ मिनिस्टर साहबा की बड़ी कैटेगोरिक 3-4 चीज़ें उनको बताई गई कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और वहाँ पर लाइनें लगने का एहतमाल था। उन्होंने हर चीज़ को रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा मैं लाइनें लगने नहीं दूँगी। मैडम एक मिनट यार, मैडम कुछ अर्से पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की एक मेहमान के साथ मुसाफिर की, बड़ा सोशल मीडिया पे शोर मचा, FIA ने गिरफ्तारियां भी की। अब आजकल जो है एक नज़म जो है जो एक बच्ची की जानिब से सुनाई थी, आ गई है सब्जी माँ आ गई है, उसके ऊपर जो है सोशल मीडिया पे तूफान बदतमीजी बरपा है। तो क्या हुकूमत जो है एक बार फिर FIA से दरखास्त करेगी कि जो इसके ऊपर भी कमेंट कर रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई? नहीं, कमेंट करने पे देखिए एतराज़ नहीं है, कमेंट करें, इख्तलाफ राय भी करें, तमीज़ से करें। सवाल बात सिर्फ इतनी है कि तमीज़ से करें, इखलाकियात का दामन हाथ से ना छोड़े। और वो जो जिनको वो सारे वो बेचारे जो अक्लमंद लोग हैं, जिनको मैं कहती हूँ, जो इस जैसे गंद के अंदर जो है वो लुथड़े हुए होते हैं, वो जब वो माँ के नाम की तौहीन कर रहे होते हैं, काश उनको अपनी अपनी माएँ याद आ जाए, वो भी किसी माँ के बतन से पैदा हुआ। में तरामीम जो है कौमी असम्बली से मंजूर हो चुकी है और सेनेट में जाके भी वो मंजूर हो जाएगी, उस पर पंजाब गवर्नमेंट का क्या रद्द-ए-अमल है? साफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज है। साफ़ती तंजीमें तो जी मेरी बड़ी एहतराम है, लेकिन गुजारिश ये है कि साफ़ती तंजीमें पहले कहती थी, जब हम डेफेमेशन लॉ लेके आए तो उन्होंने कहा कि हमें जो वो है ना, आप देखें सोशल मीडिया भी बात करें, आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बीच में डाल दिया, ये सोशल मीडिया पे स्पेसिफिक बात होनी चाहिए। अब जब सोशल मीडिया पे बात आई है, अब वो कहते हैं सोशल मीडिया पे भी बात ना हो। गुजारिश ये है कि हमें क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि इसकी जो है इस बिल को मंजूर ना करें ताकि एक मादर पिदर आज़ादी मिली जाए। यूट्यूबर जो है वो डॉलर कमाएं और कमा के बाहर रखें और मौजे करें, ना पाकिस्तान को टैक्स दें, ना पाकिस्तान की जो सोसाइटी है उसका फैब्रिक जो तबाह बर्बाद वो कर रहे हैं, ना उसको जो है वो ठीक करने की जो है वो किसी को इजाज़त होनी चाहिए। जो जिसका दिल चाहे वो कहता रहे और उसको कोई ना पूछे। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब लोग यहाँ बैठे हैं, आपके अपनी एडिटोरियल पॉलिसीज़ है ना, आप ख़बर की तस्दीक करके इसको जारी करते हैं। जो लोग इसकी मुखालफत कर रहे हैं वो एक्चुअली क्या कहना चाह रहे हैं कि फेक न्यूज़ चलने दी जाए। पूरी दुनिया के अंदर जहाँ सोशल मीडिया मौजूद है, जहाँ पर इजहार राय की आज़ादी हमसे शायद ज़्यादा है, वहाँ पर भी सोशल मीडिया रेगुलेशंस हैं। टिकटॉक पे पाबंदी लगी अमेरिका के अंदर, बहुत सारे मुल्क जो हैं वहाँ पर पाबंदी मुख्तलिफ सोशल मीडिया जो ऐप्स हैं उनके ऊपर लगी, बिकॉज वो समझते हैं कि वो ठीक नहीं है। मैं पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन रेगुलेशंस के बगैर सोशल मीडिया इस तरह नहीं चलाया जा सकता। और अब AI आ गई है भाई, AI के साथ ये मत खुश हों कि आज हमारी बारी है। आप में से आप मर्द हज़रात की भी इज़्ज़त होती है, कल AI के ज़रिए आपका कुछ जो है वो निकाल के बना के लगा दिया जाएगा, आप क्या करेंगे? और ये कब तक बर्दाश्त करना है हमने? मैं बारी बारी कर लूँ भाई। मैं सदर खुद PTI का, हम किरदार कशी के भी खिलाफ हैं, हम हर चीज के खिलाफ हैं जो है इखलाकियात से गिरी हुई हो। हम सिर्फ ये कह रहे हैं साफ्ती तंजीमें आपसे कि आप स्टेक होल्डर्स को जो है मुशावरत करें, हम भी उसमें कुछ अच्छी इनपुट आपको दे। बहुत अच्छी बात है, आप जरूर लेके आए, हम मना नहीं करते, लेकिन फेक न्यूज की डेफिनेशन भी इकट्ठे बैठ के हमारे से मुशावरत करके आप वो लाएं। हम सबसे ज्यादा हम मजम्मत करते हैं कि अगर किसी खातून या किसी की जो है वो नहीं, मियां साहब मेरी गुजारिश सुन, हमारी माए बहनें हैं। नहीं ऐसा है नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। मुझे ये बताइए, इतने अरसे से ये फेक न्यूज़ है, सब एग्जांपल लेते हैं, एक वो एग्जांपल चीफ मिनिस्टर वाली शुरू कर देते हैं। चीफ मिनिस्टर तो छोड़े, उनका तो साथ जो ये करते हैं सो करते हैं। आपने एक बैरूनी मुल्क का हमारा एक जो है वो दोस्त जो है वो यहाँ आया, उसके साथ जो हुआ, आप मुझे ये बताइए, PFUJ है या बाकी जमातें हैं, जो हुआ सोशल मीडिया पे किसी ने एक कंडेम किया? किसी की कोई मजम्मत आपने सुनी? आपने खुद जारी की? आपने आपके बीच के अंदर जो लोग सहाफ़ी का नाम इस्तेमाल करके जो वो कर रहे हैं, आप खुद आपने कभी अपना एहतसाब किया? जब आप अपना एहतसाब नहीं करेंगे फिर एहतसाब तो करना पड़ेगा ना। ये नहीं हो सकता कि आप सहाफ़ी का नाम इस्तेमाल करके अब मैंने वो जाहत ऐस खान की आपको एग्जांपल दी है, मुझे वो ठीक है, वो जो लाया उनके गले पड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताइए अच्छा नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं होता मियां साहब, हौसले के साथ। मैंने आपके हौसले से बात सुन रही हूँ ना। आपको मैंने जो सवाल किया है, आज तक सोशल मीडिया पे जो इतने बड़े जय्यद सीनियर रहनुमा जो है आपके, वो तो जय्यद सहाफ़ी हैं, टीवी पे शो भी करते हैं, वो फेक न्यूज़ लगाते हैं, फेक तस्वीरें लगाते हैं। आप में से किसी ने आज तक कहा, आज ने कंडेम किया कि भाई आपने गलत फेक खबर लगाई है, गलत तस्वीर लगा रहे हैं? नो, जब आप ये नहीं कर रहे, जब आप ये अपना जो आपका काम है, आपका काम ये भी है कि आप अपने बीच में अपनी जो ये घुसपैठियाँ हैं ना, और जो अपने आप को साफ़ी कहते हैं, बनते भी साफ़ी हैं लेकिन काम साफ़ियों वाले नहीं करते। साफ़ी का काम, पहला काम आपकी जिम्मेदारी है
وہ ہے کہ آپ نے مستند خبر دینی ہے, آپ نے خبر کو ڈبل چیک کرنا ہے, آپ نے فیکٹس کی بنیاد پہ خبر دینی ہے. جب آپ وہ نہیں کرتے تو پھر اس کے بعد مطلب آپ بھی نہ کریں, کوئی بھی نہ کرے اور کھلی چھٹی ہو, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. بیٹھتے ہیں, بالکل بیٹھتے ہیں.